بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ترکی کے شہر استنبول پہنچ گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے دو روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ استنبول ایئرپورٹ پر اسحاق ڈار کا استقبال پاکستان کے قونصل جنرل فواد شیر اور سینئر سفارتی افسر جنید یوسف نے کیا۔ OIC وزراء خارجہ اجلاس کا آغاز کل سے ہوگا، جس میں مسلم دنیا کو درپیش اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ اجلاس کے دوران ایک خصوصی سیشن ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف منعقد کیا جائے گا، جس میں رکن ممالک کا مشترکہ موقف تشکیل دینے پر غور ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان افتتاحی سیشن میں خطاب کریں گے، جبکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی اجلاس میں شریک ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اتوار کو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر OIC رابطہ گروپ کا علیحدہ اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا، جس میں کشمیری عوام کی حمایت اور بھارتی مظالم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ اسرائیلی حملے جاری رہنے کی صورت میں ایران کسی سے بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ ایران نے اسرائیلی حملے رکنے تک مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں دو ٹوک موقف دیتے ہوئے کہا کہ جب تک اسرائیل ہماری سرزمین پر حملے جاری رکھے گا، ہم کسی بھی فریق سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ ایران کی مزاحمت کے بعد مجھے یقین ہے کہ دنیا اس جارحیت سے خود کو الگ کر لے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی اور تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ جاری ہے۔ انہوں نے امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے واشنگٹن میں ممتاز اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا اداروں کے نمائندگان سے گفتگو کی، جس میں پاکستان کے اصولی موقف کو علاقائی اور عالمی معاملات پر اجاگر کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق اور آپریشن بنیانم مرصوص پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ علاقائی امن و استحکام سے متعلق پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول پر رہا۔ پاکستان نے ایک محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے مذاکرات کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ اگلے 2 ہفتے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ ایران کے پاس کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ امریکہ نے مذاکرات کے لیے ایران کو 60 دن دیے۔ 61 دن پر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کو براہ راست بیان پڑھ کر سنایا، اس بنیاد پر کہ ایران کے ساتھ مستقبل قریب میں مذاکرات کے امکانات موجود ہیں یا نہیں، میں یہ فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں کے اندر کروں گا کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ چین کی ایران جنگ میں فوجی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی خزانے سے $4 بلین کا بوجھ کم کرنے کے لیے PNSC کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری اور PNSC کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ PNSC کے بیڑے میں بحری جہاز کم ہونے کی وجہ سے سمندر کے راستے تجارت پر قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ 2 ہفتے کے اندر PNSC کا بزنس پلان پیش کیا جائے۔ PNSC کی کارکردگی پر بریفنگ میں وزیر اعظم کو بتایا گیا، ادارے کے پاس مختلف نوعیت کے 10 بحری جہاز ہیں جو کہ 7,24,643 ٹن کارگو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کسی قسم کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم شامل نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق حکومت کی توجہ اب ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور نظام کو شفافیت پر بنانے پر ہے، کیونکہ ٹیکس چھوٹ اور رعایت کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اب کوئی نئی ٹیکس چھوٹ یا ایمنسٹی اسکیم نہیں دی جائے گی۔ ان کے مطابق حکومت اب ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے پر توجہ دے رہی ہے اور یہ عمل جاری رہے گا۔
यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी ने FBI की जानिब से गिरफ्तारी से मुतालिक वजाहत कर दी। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस पर ही गिरफ्तारी होगी, जिसका फैसला FBI मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी के मरहले पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। टैक्स फ्रॉड पर FBI को गिरफ्तारी का इख्तियार पहले ही हासिल था। और अब आपको बताएं कि हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट सराय ने बताया है कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। सराय का कहना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में हर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा और फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला करके तकर्रियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। अपडेट करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस के तमाम दफातर फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। पीर तक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट में मकाम कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस के दफातर ना देने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कायम मकाम गवर्नर हाउस का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल करने के मजाज हैं, उन्हें आईनी जिम्मेदारियों से रोकना काबिल कबूल नहीं। आपको बताएं कि वासा हुकाम के मुताबिक लाहौर में जल्द पानी के मीटर्स लगाए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत शुरू की तो वासा हुकाम की जानिब से पानी का मीटर बतौर नमूना अदालत में पेश कर दिया गया। पहले मरहले में कमर्शियल कनेक्शंस पर मीटर लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि पानी के 2 लाख मीटर्स के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है। अदालत ने वासा के इकदाम की तारीफ करते हुए रिमार्क्स देने का कहा कि पानी इंतहाई संजीदा मसला है, हमारी नस्लें इससे मुतासर होंगी। वासा की जानिब से इकदाम काबिल तारीफ है। अदालत ने समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक के दरमियान आइंदा 10 साल के तरक्याती मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने पर इत्तफाक हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान के साथ आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों की रफ्तार पर, पेशरफ्त और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली जायजा लिया गया। शुल्का ने पंजाब के देही इलाकों में साफ पानी की फराहमी के पायदार निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देने पर इत्तफाक किया। बैंक नुमाइंदों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तालीम, सेहत, समाजी फलाह और गवर्नेंस के मयार की तारीफ की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पंजाब में समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और डिजिटल तरक्की के शोबों में बैंक का ताउन इंतहाई काबिल क़दर है। पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री, डेटा और डिलीवरी सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इक़दामात समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मौसर बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अब कुछ बात करेंगे दुनिया में मौजूद फलों के बादशाह आम की, जिसकी 1600 के करीब इकसाम दुनिया भर में पाई जाती हैं, मगर जनूबी पंजाब का आम अपना सानी नहीं रखता। फलों का बादशाह आम ना सिर्फ जायके और खुशबू में भी मिसाल है, बल्कि ये पाकिस्तान का वो ख़जाना है जो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इस वक्त खानपुर के बागात में भी आम की बहार है। मज़ीद जानते हैं मलिक वसीम की इस रिपोर्ट में। जायके, मिठास और मयार के एतबार से खानपुर की आमों का कोई सानी नहीं। चाहे वो सिंदरी हों, चौसा, अनवरटोर या दीगर वैरायटियाँ ना सिर्फ मुल्की मार्केट बल्कि बैन अवी तौर पर भी पसंद की जाते हैं। शहरी खुद भी पसंद करते हैं और अपने अजीज़ वकारा को तोहफे तौर पर भिजवाते हैं। कानपुर का जो चौसा है वो तो अपनी शनाख्ती रखता है। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर पेटें खरीद कर अपने रिश्तेदारों को कराची और हैदराबाद भेज रहा हूँ। आम का सीज़न चल रहा है। खानपुर का आम बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है। जैसे कि सीज़न में 4-5 पेटियाँ मैंने अपने कज़नों को भेजनी है कराची में। बागबानों का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर सपोर्ट की जाए तो आम की पैदावार में इजाफा और बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ किसान खुशहाल होगा बल्कि मुल्की मौशी तरक्की में भी इजाफा होगा। कानपुर का बहुत मशहूर आम है। दोस्त अबाब अपने इधर से लेकर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों अबाबों को देते हैं। सही हमारे इधर की वैरायटी चौसा, लंगड़ा, दुसहरी, अनवलटोर, कलमी, देसी, काफ़ी सारी इसी तरह की वैरायटी है। हम पाकिस्तान की तमाम मंडियों में जाता है हमारा माल। कानपुर का आम ज़ायके और लिज्जत के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। शहरी अपने लिए भी ख़रीद रहे हैं और अपने अज़ीज़ व अक़ारब के तोहफे के तौर पे भी भेज रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़, खानपुर।
नाज़रीन, हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने वाज़ेह किया कि मुल्क में चीनी की क़िल्लत का तासुर गलत है। हुकूमत के मुताबिक चीनी की दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और अवामी सहूलत के पेश नज़र किया गया। इजाफी स्टॉक की मौजूदगी कीमतों में तवाज़ुन कायम रखने में मदद देगी। वज़ारत ने यह भी वाज़ेह किया कि चीनी की बरामद पर माजी में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी गई। हालिया पॉलिसी के तहत तमाम ज़रूरी अजनास को डी रेगुलेट किया जा चुका है। चीनी की कीमत में कमी के लिए हुकूमत ने चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास बुलाने का भी फैसला किया गया, जिसमें चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत की थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ और सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अब बात करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान की। उनका कहना है कि महाजिर होना कोई जुर्म नहीं, अपनी मट्टी छोड़ना बहुत करबनाक मजबूरी है। पनाह गुज़ीन अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कोई शौक से पनाह गुज़ीन नहीं बनता, ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मट्टी, अपनी छत छोड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर मुहाजिरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। फ़लस्तीन और शाम के दरबदर मुहाजिरीन इंसानियत के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। दुनिया को अदराक होना चाहिए कि पनाह मांगने वाला कमज़ोर नहीं, मजलूम होता है। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद फराख दिली से लाखों मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त तरीके से मेज़बानी की है। पाकिस्तान हमेशा मजलूमों की आवाज़ बना, मुहाजिरीन की फलाह के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। दुआ है कि दुनिया में अमन कायम हो, जुल्म का खात्मा हो और हर इंसान को सुकून नसीब हो। पाकिस्तान के मुख्तलिफ दीनी मदारिस की फैकल्टी मेंबर्स और तलबा ने आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल एबटाबाद का दौरा किया। दौरे के दौरान मदारिस के तलबा को आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के मुख्तलिफ तरबियती पहलू से रोशनास कराया गया। तलबा और फैकल्टी मेंबर्स ने पाकिस्तान आर्मी की तरबियत के मयार और नज़्म व ज़ब्त को सराहा। तलबा को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स की तरबियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी को करीब से देखने का मौका मिला। तालिब इल्म हमजा अरशद का कहना था कि फ़ौज की ट्रेनिंग देखकर काफ़ी हौसला अफजाई हुई। ट्रेनर ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतें दिखाई जो कि बहुत आला थी। ISPR और पाक फ़ौज का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये सब करीब से देखने का मौका दिया। तलबा का कहना था कि आज से 20 साल कबल हमारे जामअतुर रशीद के रईस से हमने सुनना शुरू किया था कि इस मुल्क के लिए पाक फ़ौज का क़याम कितना ज़रूरी है। रईस जब पाक फ़ौज की सिफ़ात बयान करते थे तो हमने वो बातें बतौर नज़रिया ज़रूर सुनी थी, लेकिन इनका अमली मुशाहिदा हमारी नज़रों से नहीं गुजरा था। फैकल्टी मेंबर सुफियान अली ने कहा कि आज हमने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में रेस के इन अल्फाज की सही तस्वीर देखी है।